Yes, dear. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Shivam. Good morning, sir. Good morning. Good morning, dear. Good morning, sir. Yeah. Good morning. Good morning. How are you all? Good. I think how's the weather report? Morning की weather report. Everywhere okay? All okay? No, different weather stations we have. बारिश आ रही है सर कल से बहुत. फुल बारिश. Yeah, I'm sitting in Chandigarh, so बारिश है, बुखार आ रहा है सबको. Most of Yeah. लोग. बुखार नहीं आना चाहिए, बाकी ठीक है. हाँ जी सर. So, of course, please be very careful. Changing weather, most important time. You put in lot of effort, and I don't wish and I don't even feel कि हेल्थ को सबसे पहले ध्यान दीजिए. टेक लिटिल प्रिकॉशंस प्लीज. पानी वानी जो भी है आपका, बिकॉज दिस इज अ क्रूशियल पीरियड. आई नो इट्स एंड ऑफ मॉनसून, so थोड़ा बहुत तो वेदर चेंज होगा. अदर फीवर्स, डेंगू एंड ऑल दैट वेरी मच प्रिवेलेंट. So we will be continuing today with the tanker numericals. I hope what we have done so far you all remember, not forgotten. चलो उसको थोड़ा रिफ्रेशिंग स्लाइड भी आपको दिखा देते हैं. हाउ वी कैलकुलेट फ्रॉम ullage टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टू mass, and if we have a mass, and then how we go back to the ullage. So calculation by this ASTM is very simple. So we know the ullage, we calculate the GOV, that is gross observed volume, and then we find out the VCF from table 54, and we get gross standard volume, that is the volume at 15 degrees. And then we find out the WCF from table 56, or density at 15 degrees centigrade minus 0.0011 gives us a WCF, that is weight correction factor, and weight in air GSP into WCF, or basically your weight in air is GOV into VCF into WCF. And if we know the weight, same equation, just little bit shifting here and there. So if we divide the weight with WCF, we get the GSV, and if this GSV we divide by VCF at whatever temperature we want to find out the GOV of that temperature, we find out the VCF from table 54, and we get the GOV at observed temperature, and then divide by area, we get the height of oil. So इसी रिलेशन में हमने एक दो क्वेश्चन किए थे. So I think this one we have done. Another question I want you to attempt, so जिससे आपकी ये understanding about VCF, WCF, how to calculate weight, how to calculate or go back to volume at different temperature. So you guys can write down the numerical and in the question and see how far you can go, how far you can attempt. Otherwise I'll take you on the board.
लिख लिया डियर सबने? Yeah, anybody can give any hint, any clue how will you proceed? सर GOV 43 का दे रखा है, GSV निकाल लेंगे चेंज करके, फिर उस GSV को 27 पे ले जाएंगे। फर्स्ट एक वॉल्यूम तो अपने पास ये आ जाएगा। उसके बाद जो ये वाला है दूसरा वाला क्वेश्चन 163 मेट्रिक टन ऑफ द पोर्ट टैंक है, उसका अपन GOV निकाल लेंगे ऑन द 27 डिग्री ओनली। Okay. उसके बाद दोनों को ऐड करके TOV आ जाएगा और TO के बाद एरिया से डिवाइड करके वॉल्यूम आ गया, एरिया से डिवाइड कर देंगे, एलएच आ जाएगा। और उसी टाइम का अपन BC डेंसिटी भी निकाल लेंगे चेंज इन डेंसिटी करके, और उसके बाद अपने पास दोनों वैल्यू आ जाएगी, टोटल क्वांटिटी ऑफ द पोर्ट साइड आल्सो एंड फाइनल एलएच भी। ओके कीजिए। सर इस क्वेश्चन में डेंसिटी फैक्टर नहीं दे रखा क्या चेंज होने का? नहीं बच्चे, दिस इज टू बी डन विद ASTM tables. ओके। जहाँ पे आपको क्वेश्चन में डेंसिटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन वैक्यूम दे दी है, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज बाय ASTM.
सर वॉल्यूम से वॉल्यूम माइनस कर सकते हैं क्या, जैसे 263 और अनपम्पेबल Yes, that's right. 4 दे रखा है तो डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं ना 43 पे. That is right. Yeah. Okay. You have transferred only 259. ओके सर. चलो, should I take you on the board or will you be able to do it? Attempt कर रहे हो? सर कर रहे हैं अटेम्प्ट, एक बार बताते हैं आपको. चलो कोई बात नहीं, अटेम्प्ट कीजिए, कोई बात. That is very good. सर अलेज कितना आया सर? 1.422 आपका कितना है? 1.422 you said. राइट सर? Alleged is 1.52. 52 ओके ओके Sir, ठीक है, wait. थोड़ा सा गलत हो गया. ठीक है 440. 1.4. Alleged is which is 1.52. Sir, wait. हाँ, Total weight. weight input. हाँ, how वेट much? बताना सर. 395 हाँ, 440. it should be 388 something. $388.9. ठीक है. 388.9. हाँ, yes sir. ठीक है. Okay. क्या कहते हैं नवजोत, रजनीश, कहाँ तक पहुँचे हो? Navjot, are you there? Navjot? I don't think so. Navjot is not there. वो पता नहीं इस बैच का है.
लगता है बच्चे कुछ प्रॉब्लम आ रही है. शुड आई टेक यू ऑन द बोर्ड, एक्सप्लेन कर दूं एक बार? सर स्लाइड से दिखा दो. अलेज 1.52 आ रही है क्या सर? करेक्ट करेक्ट. हाँ सर, अलेज तो 1.52 आ गई. Just here, I hope all of you can see the board. Which is simple है. देखो 263 मीटर क्यूब आपके स्टारबोर्ड साइड टैंक में है, 163 मेट्रिक टन आपके पोर्ट साइड टैंक में है. He has given me density at 15 degree, and then you transfer, leaving 4 meter cube, 263 minus 4, 259 meter cube you transfer into this port side tank. I have transferred 259, that means how much oil is transferred? 259. So oil transferred is 263 minus 4 meter cube unpumpable, 259 meter cube, which is at temperature 43. Very easily you can find out the VCF at 43. कितना है आपका? 9793. VCF at 43. 9792. सर 979268. So इतना नहीं है. So 9793 is good enough. So 92 में भी थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा. And straight away I get 259 into 0.9793 मैंने किया तो मेरे पास GSP आ गया. So 259 into 0.9, 253.63. 253.638 और 64 कर लीजिए, जो भी है. एनीवे I calculate the WCF 0.8917 minus 0.0011. So that straightway gives me 0.8917 minus 0.0011, 0.8906. आपके पास मास आ गया. आपने कितना किया? तो 253.64 into 0.8906 gives me 253.64 into 0.8906, 225.89. इसमें मैंने 225.89 मेट्रिक टन और ऐड कर दिया. स्ट्रेट वे आपके पास क्वांटिटी आ गई. हाउ मच ऑयल यू हैव इन योर पोर्ट साइड टैंक. Question is now very simple. I have 388.89 metric ton in port side. इसकी मेरे को अलेज निकालनी है. क्वांटिटी आपकी आ गई. एक क्वेश्चन सिंपल. And now he says after the transfer the final temperature has come to 27 degree centigrade. So you can see total mass or quantity in port side is equal to 163 plus 225.89, 388.89 metric tons. I hope we can calculate GOV at 27 degree centigrade.
सर मास में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, मेरा 388.68 आ रहा है। हो सकता है आपने VCF कुछ अलग लिया हो थोड़ा सा, 9793 की बजाय आपने 972 या कुछ और ले लिया तो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। WCF में फर्क नहीं आएगा। It is straight away 259 into 0.9793 into 0.8906, 225.89 plus 163, 388 चेक कर लीजिए। अब इसका मेरे को वॉल्यूम चाहिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यार ये जो मास है 388.89, इसका 27 पे वॉल्यूम कितना होगा? What is the VCF at 27? सर 0.9911। 0.9911? यस सर। Yeah. Okay, VCF at 27 is 0.9911. GOV at 27 is again mass 388.89. और VCF को मैं थोड़ा साइड पे लिख देता हूँ 9911. मास डिवाइड बाय WCF आपके पास ऑलरेडी है 0.8906, एंड इसी को मेरे को VCF है 27 से डिवाइड करना है 0.9911। दोनों से आप इसको डिवाइड कीजिए, आपके पास स्ट्रेट वे GOV आ जाएगा एट 27। कितना आया? 440.58। दिस इज द वॉल्यूम इन योर टैंक। अब आपके टैंक के अंदर यू हैव कैलकुलेटेड आफ्टर ट्रांसफर टोटल ऑयल इज 388 पॉइंट इतने, एंड इसका वॉल्यूम जो है इट इज 440.58, 440.58 मीटर क्यूब। 27 डिग्री पे। सिमिलरली LH 440.58 divided by, I think is given the dimensions of the tank. What are the dimensions of the tank? चलो देखता हूँ, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 into 9.8। Yeah. Divide by 14 into 9.8. कॉलेज के लिए आपको, so this is a basically height of coil. This will be equal to 3.209। okay. फोर 40.16 डिवाइड बाय 14 इंटू कितना है? 3.21 आना चाहिए। देखो 3.209 आया मेरा। हाँ ठीक है, 09 इज ओके, उसको राउंड अप कर दिया 21 पे। देयरफॉर LH, ये तो सिंपल है, आपकी टैंक की हाइट है आपके पास 4.73 माइनस 3.21 1.52 मीटर। प्लीज राइट द आंसर। क्वांटिटी 388.89 and LH 1.52. I hope clear to everyone. सर मैंने इस क्वेश्चन को है ना GOV के साथ ही किया था, मतलब पहले GSV निकाल लिया 43 पे, उसको GOV में कन्वर्ट कर लिया। Anyway, सेकंड में भी GOV 15 निकाल के उसको GOV 27 में कन्वर्ट कर लिया। correct. और टोटल TOV निकाल के LH निकाल लिया था। Anyway, you can do anyway. So whatever method is shorter to you, whatever you are convenient, it is up to you.
अल्टीमेटली प्रिंसिपली हम गलत नहीं होने चाहिए कि आप पहले उसको कन्वर्ट करो, इंडिविजुअल को कन्वर्ट करो। तो मेरे लिए ये शॉर्ट फॉर्म लगा कि ठीक है यार, इतना तेल यहाँ ट्रांसफर किया, इसमें ऑलरेडी मेट्रिक टन्स हैं 163, तो मैं इसको मेट्रिक टन में कन्वर्ट करके फर्स्ट आंसर मेरा I can immediately come to know first answer 388.89 मेट्रिक टन मेरा आंसर आ गया है। सर बस ये GOV 27 सर आपने कैसे लिया सर? ये नीचे ये देखिए किया क्या मैंने, मास को डिवाइड बाय WCF, इतना पोर्शन देखिए, बेसिकली इक्वेशन वही है ये तो ठीक है WCF। सर, मास को डिवाइड किया से तो सर ये GSV मिलेगा ना? GSV डिवाइड बाय VCF, वही तो किया है। अच्छा ठीक है। अच्छा आप समझिए, देखिए हमारे पास अगेन आई एम टेलिंग यू, आपकी ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो क्या रहा है, मास इज इक्वल टू GOV इंटू VCF इंटू WCF। आपको सिर्फ यही चीज याद रखनी है, दैट्स ऑल। बाकी हम इक्वेशन यही से हर चीज इसी को चेंज कर रहे हैं। अब चाहे मैं इसको हम GSV कह देते हैं, बात वही है। अब यहाँ पे भी मैंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ GSV निकालूं फिर वो करूं, मैंने इसी इक्वेशन में से मास मेरे पास था, मैं ये दो चीज़ों को यहाँ पे ले आया, मास डिवाइड बाय दिस WCF इंटू VCF, मेरे पास GOV आ गया। दैट इज व्हाट आई हैव डन। अदरवाइज आप क्या कर रहे हैं, GOV इंटू VCF, जिसे हम GSV लिख देते हैं। तो मास इज इक्वल टू इधर वे GSV इंटू WCF, एक ही बात है। एंड देन आई ट्रांसफर दिस WCF को मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ, एंड देन आई से इट इज इक्वल टू GSV। अब GSV आ गया तो GSV वी नो इज इक्वल टू GOV इंटू VCF। अब मेरे को चाहिए GOV 27 पे, तो मेरा VCF भी मेरे को 27 पे ही निकालना है। अब मैं इसको GSV डिवाइड बाय VCF एट 27 इज इक्वल टू GOV एट 27। एक ही इक्वेशन है, उसी को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो वट एवर वे कन्वीनियंट। सो हमने ये तरीका निकाला, ठीक है, वॉल्यूम अगर 27 पे निकालना है, GSV आपके पास है, so GSV डिवाइड बाय द VCF एट दैट ऑब्जर्व टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे GOV निकालना है आपको स्ट्रेट वे उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, GOV मिल जाएगा। हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, ओनली उसी इक्वेशन को शॉर्टर फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में लिख रहे हैं। चलो ये तो था। एनीबॉडी एनी डाउट? कहीं पे भी कोई स्टेप नहीं समझ आया किसी में भी? बिकॉज आई वांट यू टू बी वेरी थॉरो विद दिस कन्वर्शन। यार मास को वॉल्यूम में कैसे चेंज करना है, वॉल्यूम को मास में कैसे चेंज करना है, एंड अगर मेरे पास मास है तो मेरे को उसका ऑब्जर्व टेम्परेचर पे वॉल्यूम कैसे निकालना है। सर इस मास की जगह स्टैंडर्डाइज टर्म लिख सकते हैं, वेट इन एयर, हम लोग अपना ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लिख सकते हैं, दैट इज ओके, दैट इज ऑल सेम थिंग। बेसिकली इफ यू आस्क, अगर हम ज़्यादा डीप फिजिक्स में जाएं तो मास इज बेसिकली व्हाट, क्वांटिटी ऑफ मैटर। सो मास इज एक्चुअली, अगर आप कहिए तो दिस इज वेट इन वैक्यूम। बट हम उतनी डीप फिजिक्स हमारे शिप में हमें चाहिए नहीं है। सो फॉर आवर प्रैक्टिकल पर्पसेस, वेदर आई कॉल इट मास, we consider mass is equal to same, is equal to weight, is equal to quantity of oil, weight of oil, mass of oil। हम उसको उतना फिजिक्स में डीप नहीं जा रहे क्या उसका मीनिंग है, बिकॉज एज लॉन्ग एज वी अंडरस्टैंड कि व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय मास और वेट और क्वांटिटी इज द सेम थिंग। सर पर अगर इसे हम ये मानेंगे मास को, तो जैसे मास तो हर जगह, अगर वैक्यूम पे वेट हो गया एयर का, तो मास तो अपन कांस्टेंट ले रहे हैं कोई सी भी डेंसिटी पे। या अगेन सो मास बच्चे, जैसे हमने किया था कि हमने एक टर्मिनोलॉजी की थी कि हमारे पास GOV इंटू, अगर मैं इसको और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इन वैक्यूम,
से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इफ यू सी दिस इज बेसिकली मास, एंड फिर हम इसकी टर्मिनोलॉजी को चेंज करते थे, वेट इज इक्वल टू एक्चुअली GOV इनटू डेंसिटी इन एयर। दिस इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी लिखने के लिए कि आई कैन राइट वेट इन वैक्यूम और मास, बट उसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए। इट इज अंडरस्टूड when we are working, when we talk, because we are not dealing with vacuum or anything, we are dealing, we need the quantity in air, we are dealing everything on the ship in actually air। क्या यार कितने टन आपने यहाँ पे लोड किया, कितने मीटर क्यूब था, that is how we handle the all the trim, stability, everything। so इसके लिए I don't think anybody will go deep into it कि तुमने इसको मास क्यों लिख दिया, वेट होना चाहिए था, वेट क्यों लिख दिया, because for practical purposes we are meaning everything same। तो ये तो यहाँ तक तो था सब कुछ ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, अब जो अब फेज 1 में जो अपना क्वेश्चंस हमारे हैं, ये तो हमने किया था, दीज वर द बेसिक टैंकर कैलकुलेशंस। अब हमने कैलकुलेट करना देख लिया, हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी एवरीथिंग, बट सो फार व्हाट वाज गिवन टू मी, अलेजिस व्हेन द शिप इज अपराइट। अब तक तो जो मैं अलीज हैंडल कर रहा था, ये मेरा टैंक है, जितने भी क्वेश्चन किए कि दिस इज माय ऑयल एंड दिस इज द अलीज, वेदर हियर और हियर और हियर द अलीज वाज सेम बिकॉज द शिप वाज ऑन इवन की। नाउ द प्रॉब्लम प्रैक्टिकली तो ये नहीं रहती, वी आर नॉट ऑल द टाइम मेजरिंग अलीज व्हेन द शिप इज ऑन इवन की। नाउ व्हाट हैपेंस if your ship is in a trimmed condition? Now when the ship is in a trimmed condition, then what will be? So if you say this is your center of the tank, I'm just elaborating it। सेंटर ऑफ टैंक, इस टैंक की करेक्ट अलेज तो हमेशा दिस इज द करेक्ट अलेज, बट व्हेन शी इज इन अ ट्रिम्ड कंडीशन, आपका जो ऑयल है दैट विल बेसिकली, ऑयल सरफेस विल लुक लाइक दिस, और रादर आई विल शो इट इन अ रेड पेन। The moment she takes a, she is in a trimmed condition, so this will be your oil surface। Now if you take the ullage, your ullage port is here, slightly above the deck। Now when I take the ullage with the tape, sonic tape, UTI, whatever we call it, so जब मैं उसे टेप से साउंडिंग और अलेज लेता हूँ, it will go 90 degree to the oil surface। This tape will go 90 degree। I call this U and I call this O। This is what I will get observed ullage। This is my tank ABCD, but this is not the correct ullage। Correct ullage तो ये वाला surface। Now I have to calculate basically ये वाली ullage UT, एंड इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ UP। मैंने यहाँ से टेप लोड की, the tape will touch the surface of oil at right angles at U at point O। अगर मैं इसको टेप से ना लेता, now this is because your tape has deflected, so there are two corrections। so आपकी ये तो होगी UO is basically the observed ullage, UP अगर हम देखें, UP is the ullage corrected for tape।
ये जो टेप की डिफ्लेक्शन हुई है उसको मैं अगर करेक्ट करता हूँ तो यूपी आई गेट द एलएच यूपी। ये भी करेक्ट नहीं है, करेक्ट एलएच तो यूटी है, सो यूटी इज द करेक्टेड एलएच। अब अगर इसी स्केच में देखिए यूटी इज इक्वल टू बेसिकली यूटी इज इक्वल टू यूपी प्लस पीटी। ये मेरा सेंटर ऑफ टैंक है, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज अ ट्रिम एंगल। जितना आपका जहाज ट्रिम लेगा दिस एंगल विल बी सेम, उतनी ही टेप डिफ्लेक्ट होगी। एंड वी नो दैट ट्रिम एंगल थीटा, आई होप ऑल ऑफ यू नो, इन स्टेबिलिटी में पढ़ा होगा आपने, tan थीटा इज इक्वल टू ट्रिम अपॉन LBP। That how much is the angle of trim? So angle of trim निकालने के लिए tan theta is trim upon LBP, so theta is basically equal to tan inverse, इस वैल्यू का अगर मैं इन्वर्स कर दूं tan inverse trim upon LBP will give me the value of theta. So many times a question I asked here when we are securing cargoes, तो हमारी जो ज़्यादा एक्सेलरेशन, ज़्यादा फोर्सेस किस डायरेक्शन में एक्ट करती हैं ऑन द कार्गो, लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली। सो सिंपल आंसर है कि सर ट्रांसवर्सली शी रोल्स, द एंगल ऑफ रोल इज वेरी हैवी, शी कैन रोल 20-25 डिग्रीज। बट लॉन्गिट्यूडनली एरिया आप देखिए वो कितने डिग्री एंगल शिप रोल करता है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा चुप हो जाते हो कि यार कितने डिग्री रोल करता है, आई मीन कितने डिग्री शी गोज। सो पिचिंग इज व्हाट? पिचिंग इज बेसिकली अ लॉन्गिट्यूडनल रोलिंग, इजंट इट? तो रोलिंग तो हमारे मन में है कि यार ट्रांसवर्सली पोर्ट टू स्टारबोर्ड शिप जाता है उसे हम रोलिंग कह देते हैं। लॉन्गिट्यूडनली अगर वो रोल करता है तो उसे हम पिचिंग कहते हैं। सो एनीवे, सो दिस एंगल आई नो, I can calculate, I know the trim, I know the LBP, so this angle is known. अब मेरे पास ऑब्जर्व्ड एज आ गई, मेरे को यूपी निकालनी है एंड पीटी, ये दो करेक्शंस हैं। सो देयर आर टू करेक्शंस, वन इज कॉल्ड द टेप करेक्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड योर ट्रिम करेक्शन। अगर ये दो करेक्शन मैं निकाल लेता हूँ, I know how to calculate the corrected LH UT, UP plus UT. अब इट इज अ सिंपल ज्योमेट्रिकल इक्वेशन अगर आप देखिए, या ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन अगर आप देखिए, कि अगर मेरे को टेप करेक्शन निकालनी है फ्रॉम UO I have to come to UP, so I consider triangle UOP. I hope all of you can see the board clearly, no? ट्रायंगल छोटी तो नहीं दिख रही क्लियरली सबको? सर है तो सर छोटी पर दिख रही है। दिख रहा है। चलो, ट्रायंगल UOP, UO upon UP is what? This is 90 degree angle. tan theta, सर लेफ्ट साइड का बोर्ड दिख नहीं रहा जहाँ पे आप sin थीटा सर। ओके, मैं इधर आ जाता हूँ। सर ये कॉपी कर लें पहले, फिर sin थीटा Don't worry, don't know, just understand इसको, आपको मैं दे दूंगा इसको, ठीक है? अब जस्ट अंडरस्टैंड कीजिए इसको, कॉपी में लिखने की ना कीजिए, सिर्फ इसको पहले समझिए। आपको नहीं दिख रहा लेफ्ट साइड ट्रायंगल? ये नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा सर। ठीक है सर, फील हो रहा है आप सर, बड़ी बढ़िया। चलो मैं इस तरफ आ जाता हूँ, ओके कोई बात नहीं। Now if you see in triangle UOP, UO upon UP, UO upon UP, sin थीटा सर, cos theta, sin थीटा cos theta, हो गया। थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, ये आपका 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे, तो ये आपका बेस बन जाता है। सर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होगा ना, बेस कैसे होगा? या सर ये साइन होगा ना, sin यू थीटा होगा अपॉन ना सर, यूपी है ना? upon UP। ये एंगल 90 डिग्री है, देखिए। हाँ तो सर सब साइन थीटा हुआ ना। कॉस थीटा हुआ, के सामने वाला सर हुआ हाइपोटेन्यूस। ओके 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 सर, ओके कॉस थीटा हुआ। ये आपका 90 डिग्री है एंगल, इजंट इट? तो ये 90 डिग्री है, तो ये वाली साइड आपकी ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री बना रहा है, जो ये 90 नहीं, ये वाला इस पे 90 डिग्री बना रहा है, इजंट इट? सो हमेशा द साइड अपोजिट टू द एंगल इज द बेस। सर जो आपने भी अभी बनाया सर, उसके हिसाब से यूओ परपेंडिकुलर और यूपी हाइपोटेन्यूस है सर। दोनों परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे पे, दो लाइन अगर काट रहे तो चेतन, अरे थीटा यू पे है। थीटा यू पे है ना। बेस हाइपोटेन्यूज ना। cos थीटा क्या होता है? व्हाट इज cos थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमने क्या लिया इसको, आपकी ये ट्रायंगल बनी है, ये आपका 90 डिग्री है, इट इज मेकिंग ये एंगल 90 डिग्री है, और बेसिकली एंगल यू निकाल रहा है ना, isn't it? इसमें थीटा भी डाल दीजिए, थीटा दिखा दीजिए, थीटा का थीटा तो ट्रायंगल में डाल थीटा दीजिए। एंगल यू पे है ना सर, फिर ठीक है। ये आपका एंगल है, तो इसके ठीक अपोजिट है। एंगल ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। पर वो थीटा पी पे समझ लिया था हम लोगों ने, इसलिए साइन बोल रहे थे। थीटा नीचे ले रहे हैं ना। हाँ जी, एंगल ये तो थीटा ही है ना, जितनी ये ट्रिम होगी उतनी ही आपकी टेप डिफरेंस होगी। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं आपको, अगर ट्रायंगल थोड़ी समझने में। अब ये मेरा एंगल 90 डिग्री, और ये मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, ये U है, दिस इज UO, दिस इज P। अब ट्रायंगल UOP, ये जो एंगल है आपका, दिस इज थीटा, तो थीटा के अपोजिट तो परपेंडिकुलर आ गया, ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, isn't it? So U upon UP is equal to cos थीटा। चलो इसको कर लेना थोड़ा रिफ्रेश, फिर आप यूज टू हो जाओगे। हमें चाहिए यूपी, हमें यूपी की वैल्यू निकालनी है, तो यूपी विल बी इक्वल टू यूओ अपॉन कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज यूओ? यूओ क्या चीज है? आलेज बाय टेप। ऑब्जर्व कर लीजिए। Observed allege, isn't it? U is the observed allege, so UP आपकी आ गई, टेप करेक्शन आ गई, observed allege डिवाइड बाय cos थीटा, वेरी सिंपल, observed allege डिवाइड बाय cos थीटा, वी गिव यू द UP। अब मेरे को यूपी नहीं चाहिए, मेरे को तो करेक्ट अलेज यूटी चाहिए। अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ PTE। नाउ यू टेक ट्रायंगल PTE, PTE ये वाली ट्रायंगल, ये एंगल थीटा, ये PT, ये TE, और ये अलेज पोर्ट जो है आपको उसने शीट में भी हमें पता है, क्वेश्चन में भी दे दिया। सपोज आई कॉल दिस इज A meters forward of the aft bulkhead, your allege port is A meters forward of the aft bulkhead, so ये डिस्टेंस हमें पता है। अब इन ट्रायंगल PTE, PT अपॉन TE इज इक्वल टू व्हाट? ट्रायंगल PTE, सर ई कहाँ लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है ना। अच्छा ठीक है सर, ओके ओके। so PT upon TE will be equal to what? tan theta, isn't it? अब ये जो tan थीटा है, हम इसको tan थीटा भी लिख सकते हैं, we know tan थीटा is equal to trim upon LBP, वो भी लिख सकते हैं, कुछ भी, both are equal। PT will be equal to TE into tan theta, yes or no? What is TE? Can you calculate what is TE? सर मिडशिप माइनस A। Correct.
लेंथ ऑफ द शिप, ये आपकी क्या आ गई, हाफ लेंथ, ये आपकी पूरी एल, इसको मैं एल बोल देता हूँ, दिस इज द लेंथ ऑफ द टैंक, एंड सेंटर ऑफ द टैंक, ये जो स्पेस होगी ये कितना हो गया, L/2, यस और नो? सेंटर ऑफ द टैंक से यहाँ तक L/2 हो गया ना ये? यस सर। इस L/2 में से मैं ये डिस्टेंस जो मेरे को A डिस्टेंस पता है, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, L/2 माइनस A इज बेसिकली इक्वल टू TE, ये डिस्टेंस आ गया। ये मेरा सेंटर ऑफ द टैंक था, हाफ टैंक की लेंथ आ गई L/2, उसमें से मैंने ये जितना मेरा अलेज पोर्ट हाफ बल्केट से फॉरवर्ड था, ये डिस्टेंस में इसमें से माइनस करता हूँ, तो मेरे पास ये TE बच गया। सो दिस इज बेसिकली L/2 माइनस A, सो आई कैन राइट दिस TT इज इक्वल टू L/2 माइनस A इंटू tan थीटा। अब मेरे पास एक करेक्शन आ गई दोनों कि, एक तो मेरे पास पहले मैंने निकाली थी यूपी एंड सेकंड पीटी। नाउ इट बिकम्स इजी फॉर मी टू कैलकुलेट एनीथिंग कि ऑब्जर्व्ड अलेज को करेक्ट कैसे करना है। सो ऑब्जर्व्ड अलेज आई नो, और द करेक्टेड अलेज यूटी इज इक्वल टू यूपी प्लस पीटी, which is equal to observed allege upon cos theta plus UP plus PT। PT क्या है, प्लस L/2 माइनस A इंटू tan थीटा, फिर थीटा इज एंगल ऑफ ट्रिम। सो आपकी अलेज आपने ड्यू टू द ट्रिम। सो नाउ इट इज वेरी इजी दैट हाउ टू करेक्ट द अलेज ड्यू टू ट्रिम। इफ द शिप इज इन अ ट्रिम्ड कंडीशन, तब मेरे पास ये सिचुएशन आ जाएगी, एंड आई कैन अप्लाई दीज टू करेक्शंस एंड आई कैन कम टू नो यूटी इज द करेक्ट अलेज। सर हाँ जी सर, इसमें इतनी मतलब ऐसे ही हो सकता है, पर इतनी कैलकुलेशन की क्या जरूरत थी? अगर वो एंगल थीटा है यू पे, ये सी पे 90 डिग्री है, टी पे 90 डिग्री है, ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गए, तो ये वाला जो एंगल बचेगा दोनों पी पे, जो ये दोनों बराबर हो गए, पी का दोनों एंगल बराबर हो गया ना, उस तरफ भी यू पी इधर वाला भी हो गया, और ये दोनों एंगल बराबर हो गए ना अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो इससे डायरेक्टली अगर इस थीटा की जगह हम ये वाला एंगल निकाल लेते, तो अपने पास ये वाली जो ये टी ई है, ये तो डायरेक्टली है L माइनस ए, तो पी टी अपने पास आ जाता, वैसे ही निकाल लेते इसका, अगर यू टी ही निकालना है तो। ये कैसे निकालते हैं आप एंगल पी कैसे निकालते हैं? एंगल देखो, एंगल इन ट्रायंगल यू पी, ये सी, यू पी सी जो है ट्रायंगल, इनका बीच का एंगल 90 प्लस थीटा अपने को पता है। थीटा तो अपने को ट्रिम का पता है, ट्रिम हुआ है तो एंगल पता है कितना ट्रिम हुआ है उस हिसाब से, ओके है ना? तो ये पी एंगल आ जाता। एंगल पी आप कौन सा ले रहे हो सर? आप तो यू पी सी जो ट्रायंगल है इसके बीच का ले लीजिए इसको। हाँ, अब ये, हाँ ये वाला, अब ये वाला जो एंगल है जो जिसको आप मार्क कर रहे हो, ये एंगल और ट्रायंगल PTE में ये जो इनसाइड एंगल है, ये दोनों बराबर हो जाते, ये वाला। हाँ ओके, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ओके, अब अपने को सिर्फ PT ही निकालना है। टी ही अपने को वैल्यू पता है कि L/2 में से इसको माइनस कर देंगे डायरेक्टली A को, तो TE पता है आपको TE पता है? हाँ TE पता है, ये 9। ओके, TE पता है, आपने ये एंगल निकाल लिया, ये एंगल आपको पता है, आप PT की वैल्यू कैसे निकालोगे? ट्रिग्नोमेट्री लगेगी सर, जैसे मर्जी निकाल लो। अरे व्हाई गो सो कॉम्प्लिकेटेड, इट इज सो सिंपल, इजंट इट? हमको इस एंगल की जरूरत ही नहीं, हमें जो भी उसने दिया है हमारे पास है, हमारे पास ये एंगल आ गया कि ठीक है यार ये ऊपर का एंगल, कि यस व्हेन वी टेक द अलेज वी नो। अब मैं दूसरे केस में कहता हूँ, सपोज यू आर टेकिंग अलेज विद द रेडार बीम और वेसो गेज। एटलीस्ट टैंकर वाले जिन्होंने रेडार बीम याद यूज किया है, सैप गेजेस आपने की हैं या वेसो गेजेस आपने यूज की हैं,
उसमें क्या होता है, उसमें तो टेप है ही नहीं, उसमें तो डिफ्लेक्शन है ही नहीं, वो तो टेप सीधी पैरेलल टू आफ्ट बल्कहेड जाती है। तो उसमें एक करेक्शन खत्म हो जाता है, टेप करेक्शन। ऑफ कोर्स। तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है, मेरे को ये सिंपल है कि यस आई नो यार, मैंने अगर ये जहाज सीधा होता मेरे को सीधी यूटी मिलनी थी या एलएच मिलनी थी। अब जहाज ट्रिम हुआ, ऑयल जो है पीछे आ गया, ये मेरे को मेरी टेप जो है डिफ्लेक्ट हो रही है, तो मैंने ये डिफ्लेक्शन सीधी cos थीटा लगाया, ऑब्जर्व्ड एलएच डिवाइड बाय cos थीटा, थीटा की वैल्यू मेरे को पता है, मैं यहाँ पे यूपी पे आ गया। एंड उसके साथ ही मैंने ये वाली ट्रायंगल ली कि हाँ यार ट्रिम कितनी चेंज हुई है, ड्यू टू द ट्रिम क्या इफेक्ट हो रहा है, विच इज ऑफ कोर्स वेरी। अब ये यू और यूपी आप देखना, इट इज ऑलमोस्ट सेम बिकॉज दिस ट्रिम एंगल्स आर वेरी स्मॉल। थ्योरेटिकली स्पीकिंग के लिए हम इसको देखेंगे कि अगर ऑब्जर्व्ड एंगल, आई मीन आप ऑब्जर्व्ड एलएच को लीजिए, अगर आपकी ऑब्जर्व्ड एलएच 1.5 मीटर है, डिवाइड बाय कॉस ऑफ 0.5 ट्रिम एंगल, अगर आपकी ट्रिम 1 मीटर या 1.5 मीटर है, तो cos of 0.5 will be I think 0.9999, so 1.5 divided by 0.999 will be 1.5 only, they almost same range। हाँ सर, बराबर से है। सिंपल, काय को उसको कॉम्प्लिकेटेड करना कि यार सिंपल लिया मैंने, ठीक है, मेरे को एंगल पता है, मैंने उस एंगल की वैल्यू निकाल ली, एंड वी वर्क इन दिस वे, स्ट्रेट वे आई अप्लाई द करेक्शन। सर ये आपने लिस्ट पे बताया ना, लिस्ट पे। चलो बच्चे, आज तो टाइम कम हो गया, सो एटलीस्ट नाउ यू हैव स्लाइट आइडिया कि नाउ इफ शी इज ट्रिम, जो मेरे को अलेज मिलेगी वो करेक्टेड अलेज नहीं होगी, उसको मैंने करेक्ट करना है। हाउ डू आई करेक्ट? क्या सिंपल मेथड ले लिया मैंने। आई एम स्टॉपिंग इट टू हियर ओनली। ये मैंडेटरी चीजें गिवन ही होंगी ना सर, मतलब एक तो अलेज दिया होगा, लेंथ भी दिया होगा वेसल का, और ये अपना कितने सेंटीमीटर पावर से डिफरेंस है वो भी दिया होगा। यस बस फिर अलेज निकालो। सर ये एक जन अभी पूछा था, ये अभी आपने ट्रिम वाले केस में बताया ना, लिस्ट वाले में नहीं बताया था। 10 बज गए, क्लास होगी, 1 घंटा और चाहिए। इफ आई हैव टाइम, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट पहले स्टेप वाइज चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट हमने ट्रिम समझ लिए कि हाउ टू करेक्ट द अलेज फॉर ट्रिम, ड्यू टू ट्रिम, तो एक स्टेप तो पूरा हुआ। बट आपने डायग्राम तो लिस्ट का बना रखा है, सेंटर लाइन एक टैंक में दिखा रखी है, लिस्ट हो रखा है जहाज। आप कह रहे हो लिस्ट हो रहा है जहाज, दिस इज द आफ्ट एंड दिस इज फॉरवर्ड, is she listed? Is she listed? नहीं, सेंटर लाइन जो बनाई ना सर, सेंटर लाइन से कंफ्यूजन हो गया। सेंटर लाइन ऐसे आपने बनाई ना बीच में। सेंटर लाइन ऑफ अ टैंक इज अ सेंटर लाइन, तो 2 डायमेंशनल है। Imagine your cargo hold, imagine your tank, when the ship is got a trim, तो उसकी सेंटर लाइन थोड़ा चेंज हो जाएगी, यस और नो। अब इसी को अगर मेरे को आपको ट्रिम में दिखाना है, तो मैं आपको कहता हूँ जस्ट इमेजिन दिस इज द पोर्ट एंड स्टारबोर्ड साइड। अब इफ दिस इज द स्टारबोर्ड साइड, दिस इज द पोर्ट साइड, नाउ द शिप इज एक्चुअली लिस्टेड टू पोर्ट। ये तो आपकी स्केच है, कैसे आप दिखा रहे हो। अब इस केस में हमने दिखाया कि शिप इज इन अ ट्रिम्ड कंडीशन, कि आपका जो शिप है बेसिकली, अगर ये एक बॉक्स है, दिस इज द टैंक, अब ये ट्रिम कंडीशन में ऐसे को है, तो इसका सेंटर लाइन तो ऐसे ही होगा। तो मैं इसको आपको, आप जो देख रहे हो, यू आर लुकिंग इनटू दिस मशीन ड्राइंग, अगर आप देखिए तो आप इसको ये देख रहे हो, ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये सेंटर लाइन दिख रही है, और ये आपका ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपका। ठीक है सर। चलो, ऑलराइट, ठीक है, मिलते हैं आपकी, या कल क्लास है, कल तो वी विल डू विद द टाइड्स। चलो थोड़ी सी आप इसको विजुलाइज कीजिए, ओरिएंटेशन कीजिए, फिर आपको समझने में मुश्किल नहीं आएगी। ओके।